Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and we are back with newspaper analysis. Today is 13th of October, and these are the five articles we are going to discuss. First one is about India's rise as a global arbitration hub. Arbitration आपको पता है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी मामले में, तो उसको रिजॉल्व करने का अगर मैकेनिज्म है, इट इज कॉल्ड arbitration. The second article is about Maitri 2. Maitri is the polar station which India has created in Antarctica. It is for research purpose. So we are talking about Maitri 2. Maitri 1 already exists. Third is global burden of disease. ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट 2025 जो रिलीज हुआ है उसके बारे में आर्टिकल है. देन इंडियाज 4G स्टैक एक्सपोर्ट एम्बिशन. फिफ्थ इज अबाउट mission for Atmanirbhar in pulses. Okay, so without any further ado, let's get started. This is the QR code of Telegram channel that we have. On this channel, you can access all the important PDF, infographics, etc. This is the foundation batch, which we would be launching very soon. This is specially designed for those who are working professional. You kindly consider joining this batch by contacting these numbers mentioned. Let's get started. The first article is India's rise as a global arbitration hub. Okay, तो जो इंडिया का अभी एक सेलिब्रेशन हुआ एक वीक, इट वाज द इंडिया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वीक. इट रिफ्लेक्टेड दैट द चेंज दैट वाज अनइमेजिनेबल आज से 10 साल पहले तक. कोई किसी ने सोचा नहीं था 10 साल पहले कि इतना प्रोग्रेस डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में इंडिया कर लेगा. तो कंटेक्स्ट क्या है दैट gradually, India is emerging as a preferred destination for international commercial dispute resolution. And it signals that legal ecosystem या जो week celebrate हुआ है ना, alternate dispute resolution week, and the Bar Council of India's 2025 rules on foreign lawyers, they reflect a confident and globally interacted Indian legal profession. Key developments क्या हुआ? एक, there's a shift in the judicial outlook. Like the Supreme Court of India, which was primarily known for its judicial activism, now supports the creation of India as the global arbitration and dispute resolution hub. Why? To attract both domestic and cross-border investment related dispute. We are strictly talking about the economics of it, economic disputes. इनिशियली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखो तो 1990 से लेकर 2018 तक जो फॉरेन लॉ फर्म्स जो थे, they were restricted from practicing in India due to protectionist concerns of Indian government, right? बट फिर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए जैसे लॉयर्स कलेक्टिव का था या ए के बालाजी का था या 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें अलाउ किया कि फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट कंसल्टेशन बट नो परमानेंट ऑफिस. ठीक है. The other dimension which article discusses is about transformation of India's legal sector. Indian law firms now have grown exponentially. पहले 15-20 लॉयर्स होते थे, अब 1000+ लॉयर्स का भी फर्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है ना. एंड दिस ग्रोथ हैज बीन ऑर्गेनिक, नॉट एफडीआई ड्रिवन. बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आया इसलिए ये ग्रो नहीं हुआ है. तो लॉ फर्म का ग्रोथ जो हुआ है वो ऑर्गेनिकली हुआ है. मेनी इंडियन लॉयर्स नाउ प्रैक्टिस ग्लोबली विथ मल्टीपल क्वालिफिकेशंस. जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का 2025 रूल्स है, दे प्रोवाइड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स. मतलब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स किस तरीके से इंडिया में एंगेज करेंगे. बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इट परमिट्स प्रैक्टिस इन फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एज वेल. ठीक है. इसमें एक रेसिप्रोसिटी भी क्लॉज है जिसमें अगर फॉरेन फर्म्स अलाउड ओनली इफ इंडियन लॉयर्स एंजॉय सिमिलर राइट्स अब्रॉड. What could be the objective? Obviously, the objective is to ensure
कॉम्प्लीमेंटारिटी, मतलब वी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स एफर्ट्स एंड फैसिलिटीज एंड नॉट द कंपटीशन। इसके पीछे अंडरलाइन फिलोसॉफी क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स अरिस्टोटल्स गोल्डन मीन। वी डोंट वांट आइदर रेकलेस लिबरलाइजेशन और डिफेंसिव इंसुलैरिटी। हमको दोनों के बीच में कुछ गोल्डन मीन चाहिए। It emphasizes measured reforms and capacity building in the legal ecosystem. As Tagore said, everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. बहुत बढ़िया फिलोसॉफी है। इसके ऊपर कोट, ये कोट के ऊपर अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, that everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. Anyways, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक, इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब। सेकंड, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होता है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन सबको बूस्ट कर देता है। क्रॉस बॉर्डर लीगल कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है, एंड जुडिशियल मैच्योरिटी या इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें चैलेंजेस भी तो है। फर्स्ट, देयर इज अ चांस ऑफ ओवर रेगुलेशन या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, है ना, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया। दीज थिंग्स कैन डिटर द एंट्रेंट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की जरूरत है, एंड जुडिशियल एफिशिएंसी की भी जरूरत है। These must maintain ethical standards and avoid foreign dominance. Way forward, first लिबरलाइजेशन तो करना है, लेकिन लिबरलाइजेशन ग्रेजुअल होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सेफगार्ड्स भी रखने जरूरी है। देन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन सेंटर्स। Then we also need enhanced cooperation between bar, bench, and academia. We also need to promote legal education and international exposure for Indian lawyers. ये MCQ है. Try and go through it. Please mention your answers in the comment section so that it can give you the correct answers. ठीक है? इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक की आप प्रैक्टिस करिए। सेकेंड इज मैत्री टू। मैत्री टू मीन्स देयर इज अ मैत्री वन। मैत्री क्या है? मैत्री है पोलर रीजन में, पोलर रीजन में इंडिया का इंडिजिनियस रिसर्च स्टेशन। ठीक है? सो एक बार बन गया तो बाय जनवरी 29 मैत्री टू विल बिकम इंडिया फोर्थ रिसर्च बेस ऑन द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। इंडिया ऑलरेडी हैज थ्री, उसमें से एक डीकमीशन हो चुका है, तो फंक्शनल दो ही है अभी, फिर वो 2019 तक तीन हो जाएंगे। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो मैत्री टू है, विच इज सपोज टू बी स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका, to be completed by January 29. This project has received approval from the finance ministry. यही से तो पैसे आएंगे ना, फंड्स यही से तो आएंगे। And this marks a major leap in India's polar science diplomacy, environmental monitoring, and renewable energy integration in extreme climates. Background: इंडिया का जो प्रेजेंस है इन अंटार्कटिका, इट बिगन इन अर्ली 1980s। जो पहला था दक्षिण गंगोत्री, इट वाज 1983 में। अब वो डिकमीशन हो चुका है, अब वो एज अ स्टोर रूम ही यूज होता है। मैत्री जो पहला था, मैत्री वन, 1989 में आया था, जिसमें करन इनलैंड बेस है एट ओएसिस। सेकेंड आया, मतलब थर्ड एंड सेकेंड फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन 2012, 2012 में। उसका नाम था भारती। इट इज मॉडर्न कोस्टल रिसर्च स्टेशन। जो मैत्री टू है, इट विल बी इंडियाज फोर्थ एंड रिप्लेसमेंट कम अपग्रेड ऑफ मैत्री। इस अब जो पुराना मैत्री है 1989 वाला, उसके जगह पर जाएगा 40 साल की सर्विस के बाद। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, या नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च जो गोवा में प्लेस्ड है, ये होंगे नोडल एजेंसीज। इसके प्रोजेक्ट फीचर्स क्या है? एक, ईस्टर्न अंटार्कटिका में लोकेटेड है। दूसरा, इट विल बी कंप्लीटेड बाय द जनवरी 29। थर्ड, 2000 करोड़ ओवर द 7 years इसका बजट है। पर्पस, जो मैत्री 40 साल का तब तक हो जाएगा, उसको रिप्लेस करना। सर्व एज अ ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी। इसमें टेक्नोलॉजिकल फीचर्स क्या है? एक तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज होंगी,
सोलर ड्यूरिंग समर्स एंड विंड पावर ड्यूरिंग द विंटर्स। ठीक है। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट का इंप्रूवमेंट होगा, लिविंग फैसिलिटीज होगी, प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर डिजाइन होंगे टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम वेदर एंड एंटार्क्टिक विंड्स। It has some scientific and strategic importance. Obviously, it will enhance the India's role in Antarctic Treaty System and in global climate research. It will support studies on glaciology, meteorology, geology, biodiversity, and seismology. पोलर लॉजिस्टिक में इंडिया का स्ट्रेंथन करेगा, डेटा शेयरिंग में स्ट्रेंथन करेगा, एंड जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसमें इंडिया के रोल को और स्ट्रांग बनाएगा। दिस कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट मॉडलिंग and freshwater resource studies. Since Antarctica holds 75% of world's freshwater reserve, this is the mammoth amount of freshwater that Antarctica holds. Challenges क्या है? एक obviously logistical difficulties है। इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको लेकर जाना है साउथ अफ्रीका से। कार्गो ऑफलोडिंग जो होगा वो भी लगभग 120 किलोमीटर दूर होगा साइट से, जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट करना है वहां से। तो 120 किलोमीटर फ्रोजन आइस के ऊपर कैसे लेके जाओगे? देन प्रॉब्लम इज क्लाइमेटिक, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स है, हाई कॉस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मल्टीपल एजेंसीज लगेगा। मतलब 2000 करोड़ का बात नहीं है, तो ह्यूमन कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व इज इनसेन। वे फॉरवर्ड, टाइमली एग्जीक्यूशन को इंश्योर करो, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को फॉलो करो, देन enhance India's polar logistic fleets and supply chain, foster the international collaboration in polar sciences, and integrate the data from Antarctica, Arctic, and Himalayas for comprehensive climatic models. क्योंकि अभी वो तीनों का आइसोलेशन में चल रहा है ना। This is the second MCQ which you try and attempt and mention in the comment section. Next article is the Global Burden of Diseases Report 2025. ठीक है। This report has shown that leading cause of deaths in India shifts from infectious to non-communicable diseases. It is released by obviously World Health Organization, World Health Summit in Berlin, published in the Lancet report. Okay, it has highlighted the global rise of non-communicable diseases such as some heart disease, stroke, diabetes. These are the leading causes of death and disability. India has exemplified this epidemiologic transition from infectious diseases to chronic lifestyle related ailments. Key findings: non communicable diseases account for nearly two-thirds of the global deaths and disease burden. जो हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ये है लार्जर कॉजेस, लीडिंग कॉजेस वर्ल्ड वाइड। I mean, these are reflecting the global pattern of aging, of urbanization, and lifestyle changes. For India, key findings are कि in 1990 the leading cause of death was diarrheal disease, है ना। वही 2023 में लगभग 30 साल के बाद में चेंज हो चुका है, तो डायरिया डिसीज साइड में रहेगा, अब हार्ट डिसीज हो गया है। 2023 में भी अगेन हार्ट डिसीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या स्ट्रोक। हाँ, ये भी है कि मॉर्टेलिटी के रेट में डिक्लाइन हो चुका है, दैट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। इट इज इंक्रीज बाय द 13 years इन लास्ट 33 years। इसमें थोड़ा सा कोविड का भी इम्पैक्ट रहा है डेटा को शेप करने में। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन राइज ऑफ एनसीडीज इन इंडिया? एक, बॉडी की मूवमेंट ही नहीं है, सेडेंटरी लाइफ हो चुकी है, अर्बन पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, टोबैको एंड अल्कोहल का कंजम्पशन है, एजिंग पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव्ड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस है, रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एडिक्वेट प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक, इंडियाज इट मार्क्स इंडियाज एपिडोमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, जो टाइटल में भी बताया था, फ्रॉम कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस।
shift in demands in public health priorities. It highlights the need for universal health coverage and integrated primary health care. Way forward क्या है? We need to implement the national program on preventable control, prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular diseases and stroke effectively. आयुष्मान भारत को स्ट्रेंथन करो, पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करो, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करो, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल. Then encourage urban designs for physical activity and healthy dietary habits. Integrate the mental health as a part of chronic disease management. Try and solve this MCQ. Please mention your answers in the comment section. Next article is India's 4G stack export ambition. जो इंडिया का 4G stack है उसको एक्सपोर्ट करने का इंडिया हैज ambitions. कंटेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025, Honorable Prime Minister announced that India will not only achieve self-reliance in telecom technology, 4G stacking, but will also export its indigenous telecom infrastructure to developing nations. Purpose क्या है? To position India as a digital infrastructure provider in the global south, है ना? Offering strategic weight to China's headways. जो इंडिया का 4G stack है, it was developed by the consortium including BSNL, Tejas Network, TCS, and CDOT. Okay. It integrates both hardware as well as software components to deliver secure, affordable, and indigenous telecom solutions. इसके की फीचर्स क्या है? एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, मतलब रैन जिसे कहा जाता है. देन वी हैव कोर नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस जो BSNL एंड TCS ने डेवलप किया है. देन अपग्रेडेबल टू द 5G है, मतलब फास्टर. इट इज it can accommodate itself, it can adopt itself to newer contingencies or requirements. Then digital public infrastructure की synergy है, complements this digital public infrastructure, complements the India stack with digital identity, payments, and data platforms. It also has some strategic and economic significance. Digital sovereignty produce करेगा, टेक्नोलॉजी sovereignty produce करेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा हाई है. जो geopolitical counterbalance है, it serves as a counter to China's digital Silk Road initiative. But then we can use it as a form of a technology diplomacy and as a source of economic growth. Please try and solve this MCQ. Mention your answers in the comment section. This is the last article for the day. India's mission for Atmanirbharta in pulses. Context ये है कि Honorable Prime Minister launched the mission for आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो 2025-26 से लेकर अगले 5 साल तक होगा. It was launched at the Indian Agricultural Research Institute IARI in New Delhi. कॉस्ट क्या है, मतलब प्राइस इसका इज अराउंड लाइक 11,500 करोड़ के आसपास का मिशन है. The aim is to make India self-reliant in pulses by enhancing the domestic production, expanding the cultivation areas, and ensuring assured procurement at MSP. ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है. इससे फार्म इनकम भी एनहांस होगा एंड इंपोर्ट का भी रिडक्शन होगा. की टेक अवेज क्या है? 100% procurement. It aims to ensure 100% procurement of tur, urad, and masoor at MSP for 4 years. Excuse me. That is a total of 88 lakh free seed kits and 126 lakh quintals of certified seeds will be distributed among the farmers. इससे एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम 2 करोड़ फार्मर्स का गेन होगा. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, इनोवेशन एंड रेजिलियंस है.
try and solve this MCQ. Please mention your comments in. Please you mention your answers in the comment section. Smart books are now available in Assamese medium as well. For further details, connect with this number. Thank you so much.